Hello students, welcome to my channel. So our today's topic is related to class 9, first book part 1, chapter 7, the Rahim ke Dohe. So in this chapter, basically there is total 11 dohas, that is couplets. So first I will give you the summary of this chapter, sorry for the couplet. Okay, so in short, first I will explain you about all the dohas, then we will see it one by one. If you're new to my channel, so please subscribe it. So whenever I will upload any video, so first you will get the notification about it. Okay. So let's start it. So as I told you, the chapter name is Rahim Doha, Rahim ke Dohe as Rahim's couplet. So the poet name is Rahim Ji. When he was born, so he was born in 1556, which you have to remember the chapter poet name and when he was born. So first we will see in the 11th couplet what the Rahim ji is saying to us. Okay, so the video is video is available in both the languages, Hindi and English. Main focus in English. Okay, so we will see it. So प्रस्तुत पार्ट में रहीम के 11 दोहे दिए गए हैं. मीन देर इज टोटल 11 कपलेट जो हमारे जीवन के किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं. दिस वन आई एम एक्सप्लेनिंग द समरी. Okay, so which are related to, which basically these couplets are related to our life in various way, in various situations. Okay, so now we will see in the first couplet what the Rahim ji was saying to us. Okay, तो पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता. उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूटता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा से हम जोड़ नहीं सकते. बेसिकली इन द फर्स्ट कपलेट रहीम जी सेइंग द बॉन्ड ऑफ लव इज लाइक अ थ्रेड. एनी बॉन्ड ऑफ लव इज नॉट lovers, it's about brother and sister love, mom and son love, anyone. Okay, so which should never be broken abruptly, because once a thread break, you know now when the thread is break, so it cannot be joined again. Similarly the relationship is like that. If one it will be broken, it cannot be restored in the same original shape. So for in the first couplet, in the first doha, he was saying this. Okay, so now we will see the second doha. Similarly we have total 11 dohas. तो इन द सेकंड दोहा रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा मीन्स योर पेन दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए. मीन्स यू ऑलवेज हैव टू हाइड योर पेन फ्रॉम अदर्स, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है, मीन्स वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग योर पेन योर सोरो टू अदर्स, तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. तो दे विल ओनली मोक यू. ओके, मीन्स वो हंसेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएँगे, सिर्फ़ वो आपसे पूछ लेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है. ओके, सो वी विल सी इट. So in the second couplet, Rahim says that one should keep their mental anguish or pain hidden from others, because when your pain becomes known to others, they only mock you. Okay, so now the third दोहा और थर्ड कपलेट. तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए. मीन्स यू हैव टू फोकस ओनली वन टास्क एट अ टाइम, डोंट डू मल्टीपल टास्क एट अ टाइम. ओके, एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की, लक्ष्य मीन्स गोल, प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता. Basically, he want to say that when you are trying multiple goals simultaneously, so you can't complete your main goal. Okay, you will not able to complete. Means basically what happened? All my energy will be go in different tasks. So basically, want to say put all your power or strength in a one task, so that you can achieve a one goal. Okay, so in the third couplet Rahim says that one should focus on only one task at a time. If you try to achieve multiple goals simultaneously, you will accomplish nothing. Okay, it is like a plant, flowers and fruits. Now is giving the example ki flowers and fruit will only appear when the root receives enough water to nourish the plant completely. Okay. Now in the fourth couplet or fourth doha, Rahim ji saying when the God Ram वनवास मिला तो वे चित्रकूट में रहने गए थे.
ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति, विपत्ति मीन्स कैलामिटी, आती है. In the fourth couplet, Rahim says that when Rama God was exiled, he went to live in Chitrakoot. Only someone facing a great calamity would go to live in there such a place. Okay. Now we will see the fifth one. So in the fifth one, ही सेइंग कि उनके दोहों मतलब जो लाइंस होती है उसमें वर्ड्स में भी लेस हो, कम है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ज्यादा डीप होता है. तो पांचवें दोहे में रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में या उनके कपलेट में भले ही अक्षर मीन वर्ड या शब्द कम है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा गहरा, डीप होता है और कुछ कह देने में समर्थ होता है, मतलब वो हमको कुछ सिखा रहे होते हैं. So in the fifth couplet, Rahim says that although his couplets may have few letters or words, their meanings are very profound and capable of conveying a great deal. Okay. Now in the sixth doha, there is one example about the lotus. तो कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है. नाउ कीचड़ इज मड. ओके. छोटे छोटे जीव मीन स्मॉल क्रिएचर्स, लेकिन वह सागर मीन ओशियन का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी वेस्ट है, क्योंकि उस जल से किसी भी जीव की प्यास नहीं बुझ पाती. बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि कीचड़ जो मर्ड होता है उसका जो पानी होता है उसमें इतने सारे छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, लेकिन ओशियन में वो लिविंग क्रिएचर्स नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इसका जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है. तो मतलब छोटी सी चीज में भी इतने क्रिएचर्स रह पा रहे हैं, और एक इतना बड़ा ओशन है और वहां पे भी जो स्मॉल क्रिएचर्स या जो जीव जंतु है छोटे छोटे, वो अपनी प्यास को नहीं बुझा पा रहे हैं. ओके. सो वी विल सी द इंग्लिश ट्रांसलेशन. So in the sixth couplet, Rahim says that the small amount of water found in the mud is blessed because it quenches the thirst of the countless small creatures. But the vast amount of water in the ocean is useless. Why it is useless? Because no living being can quench its thirst with that water. Okay, clear it? Now we will see the seventh one. Okay. I want in the comment section when the Rahim ji was born. Okay. तो सातवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि यदि आपको कोई कुछ दे रहा है, मीन समवन इज गिविंग टू यू समथिंग, देन इज योर ड्यूटी, आपका फर्ज बनता है. फर्ज मीन हियर इज योर ड्यूटी, कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ दें. तो इन द सेवंथ कपलेट रहीम सेज दैट इफ समवन इज गिविंग यू समथिंग, it is also your duty to give them something in return. Okay. Now in 8th stanza, आठवें दोहे में रहीम जी कहती हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता. यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मतने से मक्खन नहीं निकलता. So in the eighth couplet, Rahim says that once something is going wrong or goes wrong, it cannot be fixed because no matter how hard you try, it's like milk that has curdled. You can't churn butter from it anymore. Means one it is curdled, एक बार फट गया, उसके बाद आप उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते. Okay, so milk that has curdled means एक बार बात खराब हो गई, so you can't churn butter from it anymore. Okay. This one I am giving you summary. Still explanation is pending. Okay. So till the end you have to watch this video. Now in the ninth one he is saying that कि बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है. जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता. नाउ ही सेइंग कि जहां आपको निडल की जरूरत होगी वहां आप तलवार नहीं लोगे ना, वहां पे निडल ही यूज आएगी, और जहां तलवार की जरूरत होगी वहां तलवार ही यूज आएगी. राइट. तो इन द नाइन्थ कप्लेट द रहीम सेज दैट one should not underestimate. Basically he is giving the examples which are related to in our real life in various situations. Okay. So in the ninth couplet Rahim says that one should not underestimate a small thing when a large one is present there, because when a small thing is needed a large one becomes useless.
We don't have to think like this. For example, where a needle is required, a sword is there is no any use of talwar. Okay. Now, in the 10th one, he is saying कि आपका धन ही आपको मुसीबतों से निकाल सकता है. बेसिकली योर वेल्थ कैन गेट आउट ऑफ एनी ट्रबल. क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता. मतलब आपने भी रियलाइज किया होगा कि जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपके पास मनी नहीं है, आपने बहुत बार ट्राई किया होगा अपने रिलेटिव से लेने के लिए या लोगों से लेने के लिए मनी का. तो कितने लोगों ने आपकी हेल्प की है? हो सकता है काफी लोगों को अच्छे लोग मिलते हो, बट you have to understand the meaning here कि Rahim says that only your wealth can get you out of your troubles, because in times of the trouble no one is stand by you. Only your wealth, only your money is helping there. Okay, now this one is the last. अंतिम दोहे में, I think this total 11, yeah. अंतिम दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है. बेसिकली with the water example he is explaining something to us. रहीम जी का कहना है कि किस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता. आटा मीन्स फ्लावर, नम्र मीन्स what the नम्र मीन्स ह्यूमिलिटी आई थिंक. और मोती, मोती मीन्स पर्ल का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता. उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता या ह्यूमिलिटी का रखना चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है. वी विल सी द इंग्लिश मीनिंग. So in the final couplet, Rahim uses the word water in 3 different senses. First one, he is explaining. Rahim says that just as flour cannot exist without water to make it palatable, okay, and a pearl loses its value without its luster. Similarly, a person should always maintain water, means humility in your life, humility in their behavior, without which their life becomes meaningless. So here, summary is end. Now we will see the couplet line by line. Okay. So first one is रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए. चटकाए मीन्स विद अ जोर, झटके से तोड़ देना. परिजाए मीन्स एक बार टूट गया, फॉल, ब्रोक. ओके, तो पहले हिंदी देख लेते हैं, देन ऑफ कोर्स वी विल ट्रांसफर इनटू इंग्लिश. तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, प्रेम का बंधन, एनी रिलेशन किसी धागे के समान होता है, जिसे किसी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए. कहने का तात्पर्य है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है. उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के, मतलब जब तक आपके पास एक रीजन नहीं हो कि हाँ भाई अब नहीं हो सकता, उसके बिना आप मत तोड़ो उस रिलेशन को. क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता. टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उसे उस धागे में गांठ पड़ जाती है, मीन्स नॉट आ जाती है. कहते हैं एक धागा टूटा, मैंने उसको वापस जोड़ा तो उसमें नॉट आ जाएगी ना. तो सेम रिलेशन ऐसे ही होता है. ओके, उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा आप पहले की तरह नहीं जोड़ सकते. आई विल translate to you in English so you will more understand. Okay, I want in the comment section, are you getting it by this or not? So I will make the more videos for you now. Okay, so Rahim says that the bond of love is like a dedicated thread which should never be broken abruptly but should be cherished and protected. The implication is that the bond of love is very fragile and should never be broken without a strong reason, because once a thread breaks, it cannot be mended again. Trying to mend a broken thread only result is a knot. When you again mend it, so there will be knot. So similarly, when a relationship breaks, it can never be restored in its original state. Okay. Second one दोहा is रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले लोग सब, बाटी न लेहे कोई. So here niche means अपना, personal, own. Bitha means pain. Athile means to make the fun of someone. Batna means distribute. Koi means none, anyone. Okay. So व्याख्या is
व्याख्या मीन्स एक्सप्लेनेशन। रहीम जी कहते हैं कि अपनी मन की पीड़ा मीन्स वॉट एवर inner pain you are suffering, you have to hide, you don't have to tell to other people, because whenever you are telling to other people they will only mock you. Okay, तो अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है मीन व्हेन द अदर पर्सन गेट इट, तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांटता नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। तो here Saim ji saying one should keep their inner pain or suffering hidden from others, because when other person learn about your pain, they will only mock you. No one can share your pain. That is, no one can lessen your suffering. Only you. Okay. So third one is एक सादे सब सदे. And tell me in the comment section the fun of someone. Batna means distribute. Koi means none. Anyone. Okay. So व्याख्या means explanation. रहीम जी कहते हैं कि अपनी मन की पीड़ा मीन्स वॉट एवर inner pain you are suffering, you have to hide, you don't have to tell to other people, because whenever you are telling to other people they will only mock you. Okay, तो अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है मीन व्हेन द अदर पर्सन गेट इट, तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांटता नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। तो here Saim ji saying one should keep their inner pain or suffering hidden from others, because when other person learn about your pain, they will only mock you. No one can share your pain. That is, no one can lessen your suffering. Only you. Okay. So third one is एक सादे सब सदे. And tell me in the comment section, my speed is very मतलब बहुत ज्यादा जल्दी मैं बता रही हूँ या क्या, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में. ओके, तो एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींची बो, फूले फले अघाए. ओके, ये जो रहीम जी के दोहे हैं उसमें मे भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है समझने में, इसलिए बेटर है आप बुक को ओपन करके रखो, वहां पे वर्ड्स के मीनिंग लिखो और साथ साथ में अपना ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखते जाओ, so whenever you are reading it so you will get it that time. Okay, so मूलही means root, Sichibo means irrigation, अघाय means satisfied. Okay, तो रहीम जी सेइंग कि एक बार में केवल एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम मतलब बाकी के जो आपके काम है वो अपने आप पूरे हो जाते हैं. होता है ना कि एक काम दूसरे के साथ मतलब एक काम के ऊपर बाकी के काम डिपेंडेंट होते हैं, तो पहले आप एक काम को कंप्लीट करो. ओके, क्योंकि यदि आप एक साथ सही बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश मतलब आपके बहुत सारे गोल्स है, आप उसको ट्राई करो कि मैं सबको एक साथ करूँ अचीव, तो वो नहीं हो पाएगा. ओके, तो एक टाइम पे एक ही काम करना है. तो यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100%, यहाँ पे 100% का मतलब क्या है, 100% आर यू गिविंग, तो यू कैन एबल टू डू दैट ना, यू कैन एबल टू डू इन अ वन टास्क एट अ टाइम. मैं बोलूँ कि मैं सारे काम में अपना 100% दे पाऊंगी, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट. तो रहीम जी कहते हैं कि वैसे ही जैसे नाउ इज गिविंग द एग्जाम्पल कि किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं, प्लांट फूल फ्लावर, फल मीन्स फ्रूट, तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़, जड़ मीन्स रूट में तृप्त कर दे, मतलब जितना सफिशिएंट वाटर उसको रिक्वायर्ड है उतना उसको मिल गया, उसके बाद ही तो उसमें से फूल और फल आएंगे ना. तो रहीम says that one should focus on only one task at a time, because completing one task often leads to completion of several other tasks automatically, because maybe my the other task is dependent on the main task. So first I want to complete that one task and then I have to shift to the other task. Okay. So completion of several others automatically. If you try to achieve multiple goals simultaneously, you will end up accomplishing nothing, because you cannot give your best to many tasks simultaneously. Means I can't able to give my 100% on all the tasks. I can give my 100% to any one task now. So basically he's saying whenever you have to achieve your goal, you have to break your task, give 100% in your one task, not all the tasks. Okay, once your one task is complete, then switch to the next task. Okay, so back to many tasks simultaneously. Rahim says it's like a plant that only bears flowers and fruit
One is roots receive enough water to nourish it completely. In others, but the plant will only produce flowers and fruits when it receives the sufficient amount of water. Okay, now the fourth one doha या fourth one couplet is चित्रकूट में रमी रहे. रमी means God Ram. रहमन अवध नरेश. जा पर विपदा. विपदा means calamity पड़त है. So आवत यह देश. अवध means अनहेबिटेबल. ओके, मतलब ऐसी जगह जहां आप नहीं रह सकते हैं. विपत्ति मीन्स डिजास्टर. तो रहीम जी कहते हैं कि जब राम जी को वनवास मिला था, राम जी गॉड रामा, ओके, तो वो चित्रकूट में रहने गए थे. रहीम जी कहते कि चित्रकूट मतलब एक डेंस और बहुत ही अंधेरे वाला एक वन. वन मीन फॉरेस्ट था जहां पर आप नॉर्मल पर्सन भी नहीं रह सकता है. परंतु रहीम जी कहते हैं कि वहां पर ऐसा ही पर्सन जाके रह सकते हैं जिसके आप ऊपर बहुत ज्यादा बहुत बड़ी क्लैमिटी आई हुई हो. कहने का मीनिंग ये है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है. मतलब कि मैं बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, तभी मैं उसका सॉल्यूशन कैसे भी करके निकाल पाती हूँ. ओके, so Rahim said that when Rama was exiled, he went to live in Chitrakoot. Rahim also said that Chitrakoot was very dense and dark forest, making it an unsuitable place for living. However, Rahim says that only someone facing a great calamity would go to live in such a place. The implication is that in times of adversity, a person can accomplish even the most difficult task. Okay? Have any problem? Ask me in the comment section. I will respond you there. Okay? So now we will see the fifth one, because this will make the very longer video then. दीरक दोहा अरत के आखा थोरे आए ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदी चढ़ जाए. Again I am saying कि who still not subscribe my channel, please subscribe it. So whenever I will upload any video, so you will get the notification. Once the ninth portion will be done, I will switch to the 10th. Okay. Now so here the word is arat. Arat means earth. That is meaning. Akhar. Akhar means words, letters. Thore means very little. So here रहीम जी saying कि उनके दोहे जो उनके कपलेट है उसमें वर्ड्स आपने देखा दो दो लाइन के. सी देयर इज टू लाइंस ओनली. लेकिन उनके जो मीनिंग है वो कितने ज्यादा डीप है ना. तो रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही अक्षर कम है, लेकिन उनके जो अर्थ है, उनका जो मीनिंग है वो बहुत गहरे, बहुत डीप है और बहुत कुछ कह देने में समर्थ है. ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा स्मॉल कर लेता है. जैसे कोई परफॉर्मर आता है ना, उसकी बात हो रही है. कहने का तात्पर्य कि किसी के आकार मीन बाय एनी साइज यू कैन जज एनीवन, कि उसकी प्रतिभा का आप अंदाजा नहीं लगा सकते. इंग्लिश में देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट. रहीम सेज दैट ऑल्दो हिज couplets may have very few letters or words, their meanings are very deep, very profound and capable of conveying a great deal. Just as a performer during his act can contort his large body into a small colloid shape, similarly, one should not judge a person's talent based on their height or any appearance. The point is that size is not an indicator of any one capability, any one ability. Okay. Now, sixth one is धनी रहीम जलपंख को लघु जियपियत अधाय उदरी बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए. Remember the ocean one. Okay. So धनी means wealthy. Pank means कीचड़ और mud. Sorry. लघु means small. उदरी means बड़ा. सागर ocean. प्यासो means thirsty. तो रहीम जी कह रहे हैं कि कीचड़ में पाया जाना वाला मड में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो इतना ज्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है. उसमें आपने देखे होंगे कितने छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स रहते हैं और वो अपनी प्यास उससे बुझा लेते हैं उस मड वाले पानी से. लेकिन मैं उन स्मॉल क्रिएचर्स को ओशियन में डाल दूं तो क्या होगा. ओके. लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा, सागर का जल मतलब ओशन वाटर, अधिक मात्रा में इतना लार्ज अमाउंट में होता है उसके बाद भी वो वेस्ट है क्योंकि उस जल से कोई भी जीव, कोई भी क्रिएचर अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता. कहने का तात्पर्य मीनिंग ये है कि कोई बड़ा है तो बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो
बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. ओके, so Rahim says that the small amount of water found in the mud is blessed because it quenches the thirst of countless small creatures. But the vast amount of water in the ocean is useless because no creature can quench its thirst with it. The point is here there is no meaning in being great or powerful if you cannot help to the others. मेरे पास बहुत power है, I am rich, I am this, but I can't able to help to anyone. Then what is use of my powers? Get it? So now seventh one, नाद रिजी तन देत मृग नरधन देत समेत ते रहीम पशु से अधिक रिजी कछु न देत. So nad means any music. The sound of music. Rizi is rejoicing, becoming enchanted, becoming happy. So Rahim ji is saying जिस प्रकार हिरण deer किसी के संगीत की ध्वनि when he is hearing the sound खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है. डोंट वरी, वी विल सी इंग्लिश ट्रांसलेशन. अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है. इसी तरह से कुछ लोग दूसरों से प्रेम से खुश होकर अपना धन, अपनी मनी सब कुछ दे देते हैं. लेकिन रहीम जी कहते हैं कि कुछ लोग इतने बेकार होते हैं, इज गिविंग द सिमिलैरिटी टू लाइक द एनिमल, कि वो लोगों से तो सब कुछ लेंगे लेकिन देने को कुछ नहीं देंगे उनको. कि उन लोगों कि लोग पशु से भी बदतर है, मतलब एनिमल से भी बेकार हैं, जो दूसरों से तो कुछ बहुत कुछ ले लेंगे लेकिन बदले में रिटर्न में कुछ नहीं देना है. कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है, तो अगर आप नहीं है मेरे पास, मतलब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं दे सकती, तो मैं हेल्प तो कर सकती हूँ ना. तो इतना तो आपका फर्ज बनता है किसी की हेल्प करो. तो वो बता रहे कि ऐसे लोग होते हैं कि जो ले तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं देना चाहते हैं. तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि आपको कोई कुछ दे रहा है तो इट्स योर फर्ज, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बदले में उसको कुछ ना कुछ दें. So Rhyme says that just as a deer, delighted by sound of music, he sacrificed his body, that is, surrender itself completely. Similarly, here is the example of deer. Yeah, you have to remember that in which doha, which example is related to what. Okay. Similarly, some people, pleased by the love of others, give away all their wealth and possessions to them. But Rahim says that some people are worse than animals. They take a lot from the others but give nothing in return. The implication is that if someone gives you something, it is your responsibility, it is your duty. You have to give something back in return. ऐसे नहीं सिर्फ मैं लेती ही रहूं. Okay, you have to return it. Okay. Now the eighth one is बिगड़ी बातें बने नहीं लाख करो किन कोए रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए. बिगड़ी मीन स्पॉइल, एक बार खराब हो गया. फाटे दूध मतलब फटा हुआ मिल्क, कर्डल मिल्क. मथे मतना चन चन. ओके. ना व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी इसे ठीक नहीं किया सकता. मैंने वर्ड बोल दिए, सामने वाले को हर्ट हो गए, आपने सोचा आपने क्या बोला, मैं तो बोल दिए. So now is giving with example of this by milk. So always remember क्या एग्जाम्पल हमको दिया जा रहा है. ओके, किसका किसके साथ है, मतलब कौन से वाले दोहे में किस चीज का एग्जाम्पल करके हमको रिलेट करके बता रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए. तो रहीम जी कहते हैं कि कोई बात एक बार जब बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. या वैसे ही है, जब एक बार दूध फट गया, ठीक है, तो उसको मथने से, चर्न करने से भी नहीं सही हो सकता. कहने का मीनिंग ये है कि किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि एक बात बिगड़ गई तो वापस आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. Think before saying anything. Okay. So Rahim says that when something goes wrong, it cannot be fixed no matter how much hard you trying it. It's like milk that has curdled. You can't churn butter from it anymore. The point is here we should think 100 times before doing anything, because once the situation goes wrong, it will very difficult to resolve. Get it? Now we will see the ninth one. रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी जहां काम आवे सुई. रिमेंबर द निडल वन एग्जाम्पल. कहाँ करे तरवारी. बड़ेन मीन्स बड़ा, लघु मीन्स छोटा, आवे कम.
रहीम जी कहते हैं किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मेन कोई लार्ज चीज है तो उसके सामने आप छोटी चीज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। मैं सलवार से सिलाई मशीन या इन सब का यूज नहीं, तलवार से सॉरी, तलवार से सिलाई मशीन, निडल, क्या कह रही हूँ, ओके, जहाँ निडल यूज आएगी वहां निडल यूज कर सकते हो, जहाँ तलवार यूज आएगी वहां तलवार यूज कर सकते हो। ओके, तो रहीम जी कहते हैं किसी भी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट छोटी चीज की है वहां पर बड़ी चीज यूजलेस है। ओके, जैसे जहाँ सुई की जरूरत होगी तो वहां मैं तलवार नहीं यूज करूंगी। तो किसी भी छोटी चीज को कम नहीं समझो। ओके, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। इंग्लिश, Rhyme says that one should not neglect something small just because something big is present there. In other words, we can say that, giving the example, one should not underestimate something small just because something larger is available there. Because where a small thing is needed, a large thing becomes useless. For example, where a needle is needed, a sword is no use, but it is big. Okay, the point is here, nothing should be underestimated because everything has its own importance in own place. Okay, 10th one, रहीमन निसंपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय, बिन बिनु पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सके बचाए। ओके, निज मीन ओन पर्सनल, विपत्ति मीन्स क्लैमिटी, सहाय मीन्स हेल्प, सहायता करना, जलज मीन्स लोटस, रवि मीन्स सूर्य, सन। ओके, हिंदी, जब आपके सामने धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्लैमिटी आप आ जाए, कोई नहीं हेल्प करेगा, आपके पास वेल्थ ही नहीं है, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। ये वैसे ही है यदि तालाब, तालाब मीन्स पॉन्ड, लोटस कहाँ होता है, तालाब में, उसका पानी सूख गया तो क्या वहां पे पानी नहीं होगा तो क्या लोटस सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आपका धन ही आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल सकता है। Rhyme says that when you have no wealth, no one help you in times of trouble. ये तो सबके साथ हो चुका है। It's like when a pond dries up, when the powerful sun cannot save the lotus. अब यहाँ पे पावरफुल सन क्यों बोल रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है सन, फिर भी वो उनको हेल्प नहीं कर पा रहे ना, समझ रहे हो बात को। तो सन कैन नॉट सेव द लोटस। द पॉइंट इज दैट ओनली योर वेल्थ, only your wealth can get you out of your difficulty, your problem, because in times of trouble no one stand by you. You remember that the mock one part, when you say the problem to other, they will only mock you. It is related here also. Now this one is the last one, दोहा 11. Okay, couplet 11. रहीमन पानी राख किए, यहाँ पे here we are talking about the importance of the water. बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। यहाँ पे हम 3 एग्जांपल्स ले रहे हैं। ओके, बिनु मतलब विदाउट, असंभव विच इज इम्पॉसिबल। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। ओके, रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्र, मतलब पानी कैसा होता है, एकदम उसकी तरह हमको, वाटर की तरह हमको होना चाहिए, सबके लिए हेल्प करो। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना फल विदाउट वाटर तो सरवाइव नहीं कर सकता ना, उसकी लस्टर खत्म हो जाएगी। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, मतलब आप फ्लावर्स को नीड नहीं कर सकते विदाउट वाटर। ठीक है, तो उनका कहना है कि जैसे लाइफ में वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, सेम हमको एज अ वाटर होना चाहिए, दूसरों की हेल्प के लिए प्रेजेंट होना चाहिए और अपना बिहेवियर वाटर की तरह रखना चाहिए। जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती की पल की वैल्यू नहीं हो सकती, उसी तरह हमें भी अपने बिहेवियर में हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ओके, so in the last couplet Rahim has used the word water in 3 different senses. ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन उन्होंने थ्री थिंग्स का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। The first meaning of water refers to humility. I'm pronouncing correct? Yeah, humility in a person. Rahim is saying that a person should always be humble. Yeah, humble word is fine. Okay, like a water, we will always be humble. The second meaning of water refers to luster, radiance or shine, without which a pearl has no value. The third meaning of water refers to actual water, which is shown in connection with flower, without
वाटर तो आप नीड नहीं कर सकते ना आटे को. So Rahim said that just as the flour cannot become soft without the water and a pearl has no value without its luster, similarly, a person should always maintain humility in their behavior without which their life becomes meaningless. So here are all the 11th couplet is and here. Okay, if you have any doubt, ask me in the comment section. I'm ready to reply there. I want, are you getting it by this method or not? Okay, and if you have doubt, ask me. Okay. So we will end it here, this one session. We will meet you in the another class. Thank you for watching this video. Bye bye.